We have more news coming in. This has got to do with the Chandigarh mayor elections controversy. It's now reached the High Court as expected. The hearing is tomorrow. AAP has filed a petition against the mayor elections in Punjab and Haryana High Court, challenging the manner in which it was done, saying that the presiding officer acted in a biased fashion. AAP, in fact, a while ago, along with the Congress party in a press conference that they held, had in fact said that we will indeed challenge this in a court of law. Manjeet is getting asked for details on that story. Manjeet, this was expected that the court is going to having, in fact, that the AAP and the Congress is going to in fact take this matter to the court. Well, Sneha, this matter was already pending with the Punjab and Haryana High Court, and whose directions these elections were conducted today. All we know is this, that the Congress and the Aam Aadmi Party and India Alliance has moved the Punjab and Haryana High Court, accusing the BJP of pilferage with the ballot papers. All we know is this, that BJP was polled 16 votes and the Aam Aadmi Party and Congress Alliance was polled just 12 votes. 8 votes were cancelled. There are allegations that the presiding officer Anil Masih allegedly marked the ballot papers. So these 8 votes belong to the India Alliance, which were cancelled. See, Aam Aadmi Party and Congress has criticized the BJP. And Raghav Chadha, the senior Aam Aadmi Party leader, has said this was a murder of the democracy, and they will not sit idle and will move Punjab and Haryana High Court, and will also seek action against the presiding officer who allegedly made spoiled the votes. So the hearing is expected to take place tomorrow. Meanwhile, the Bharatiya Janata Party leaders have refuted the allegation, saying BJP already had 16 votes, so all the votes were polled to them. But as far as the allegations of pilferage with the ballot papers is concerned, the councillors of Congress and Aam Aadmi Party were not happy with their parties. That is why they spoiled their own votes. This is what the BJP is saying. The matter has now reached the Punjab and Haryana High Court, and this election has kicked off a controversy. All right. Manjeet, be with us. I'm just going to come back to you for more details on that story. But this is what this controversy really is about. Victory to the BJP, undoubtedly a mega setback for the India Alliance in Chandigarh mayor elections. The BJP got 16 votes, 16 seats rather. AAP and Congress got 12. BJP candidate Manoj Kumar Sonkar was declared victorious in the high-stakes Chandigarh mayor elections, which was the first poll battle between the India bloc and the BJP. He defeated the AAP Congress joint candidate Kuldeep Singh. Chaos erupted in the House as the AAP Congress protested the decision to declare 8 votes invalid, effectively leading to Sonkar's victory. This issue has reached the High Court after AAP filed a petition against the mayor elections in Punjab and Haryana High Court. The Chief Minister of Punjab, Bhagwant Mann, is now holding a press conference. इसको ऐसे फोल्ड करना है ताकि इंक जो है वो इधर आ जाए, इधर ना जाए. उसके बाद इसको ऐसे करके ऐसे कर बड़ा डेमो दिखाया गया. मन लग रहा था कि आज तो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी बन जाएगी बहुत बड़ी. तो इलेक्शन हुई. पहली बात तो आधा पौना घंटा लेट आए प्रिजाइडिंग अफसर. अगर लोकसभा में स्पीकर ही लेट आए 11 बजे से पहले, 11:30 स्पीकर आए, तो क्या करेंगे वो जो लोकसभा के मेंबर हैं. प्रिजाइडिंग अफसर साहब 40 मिनट लेट आए, क्योंकि बाद में पता चला ना कि ऊपर से डायरेक्शन आ रही थी उनको. अभी डाउनलोड किया जा रहा था उनको कि इस ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है. इलेक्शन हो गए, मैं देख रहा था. सारे जो बेल्ट बॉक्स में से निकाल के उन्होंने फिर ऐसे खोला, ऐसे खोला, रख दिया, ऐसे केले को रख दिया. असल में उन्होंने गिना उस समय कि कितने हैं, तो उन्होंने कहा ये तो 20 बन रहे हैं. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मिलाकर 20 बन रहे हैं. फिर उन्होंने उसको दूसरी बक्से में रख लिया. दूसरे बक्से से निकाल के फिर वो साइन कर रहे हैं. उसकी वीडियो हम दिखाते हैं. पहली बात तो ये कि जब वोट हो गया उसमें फिर दोबारा साइन करने की क्या जरूरत है. जब साइन करके ही आपने बेल्ट पेपर दिया था काउंसलर को. मजाक समझते हो क्या देश की राजनीति को? क्या हम नहीं समझते? हमने भी इलेक्शन लड़े हुए हैं. तो साइन करते हैं जब, तो अब देखिए, पहले मैं आपको बताऊं, वीडियो चलाइए. ये साइन करते हैं, ये साइन है, ये उधर रख दिया. अब इस साइन
के बाद एक टिक करेंगे, ये साइन है, बीजेपी की है, ठीक है, ये देखना, ये कर दे टिक, उसके बाद साइन किए हैं, देखो दोबारा दिखाइए, जो तो बीजेपी वाली है वो तो ठीक है, ये देखो ये बीजेपी की है, वो इधर वाले बक्से में जाएगी, ये बीजेपी की है, ठीक है, मैं अपनी वफादारी निभा रहा हूं, ये वाली में टिक करके उसके बाद साइन किए हैं। अब इसको कहां रखना है, ये देखा इधर उधर, इसको इधर रख लेते हैं, ये देखा किसकी है, कोई एजेंट मौजूद नहीं है यहां पे, ये टिक कर दिया, इसको कहां रखना है, फिर देख लो करते हैं। बाद में इनको गिनेंगे इकट्ठे, ये इन्होंने 7-8 किए हैं ऐसे, ये साइन है, इस पे क्यों नहीं किया, अगर साइन का हिस्सा है वो तो इस पे टिक क्यों नहीं किया, ये भी साइन है, बीजेपी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी साइन है, ये टिक कर दिया, ये टिक कर दिया, ठीक है जी। और देखो इधर देख भी रहे हैं, देखो आंखें झूठ नहीं बोलती, देखो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कैमरे की आंखें होती हैं, वो देख रहे हैं ऐसे कि किसी को पता तो नहीं चला, ये भी रख दिया, और है ना दूसरी, यही है, ओके, मैं करके दिखाता हूं। जब आदमी कोई गलत काम कर रहा हो ना, उसकी आंखें और हाथ ऐसे होते हैं, होंठ थोड़े थोड़े कांपते हैं, जैसे सुनील जाकर के कांप रहे थे ना, मैंने कहा था ना, हाँ आपके होंठ कांप रहे थे, सही बात हुई ना। फिर झांकी में हमारी फोटो तो नहीं थी ना, मोदी की थी। अब वो साइन करते हैं, पहले जिस बोर्ड को सिलेक्ट करना है उस पर तो सीधे साइन कर, राइट करना, अब इस बोर्ड को रिजेक्ट करना है, ये कौन होते हैं जी, इधर रखने वाले, इधर रखने वाले, यहां पर बीजेपी का और यहां पर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का एजेंट क्यों नहीं था, कि मतलब यही समझ रखा है इन्होंने, ऐसे लूट लेंगे फिर हम। ईवीएम पे इलेक्शन होती है जो विधानसभा या लोकसभा की, जब ईवीएम की वोटिंग खत्म हो जाती है 5 बजे, 5:30, 6 बजे, तो सील लगती है, एजेंट के साइन होते हैं, इस ईवीएम में 1322 वोट हैं, ऐसे लिखा जाता है। जब काउंटिंग डे पर उस मशीन को निकाला जाता है, तब भी एजेंट वैसे बैठे होते हैं, जाली लगी होती है, को दिखाया जाता है ये वाली मशीन है, तो एजेंट के पास लिखा होता है कि जी इसमें 1322 वोट है, जी बिल्कुल। फिर खोला जाता है, उसको ऑन किया जाता है, सबसे पहले वो टोटल दिखाती है ईवीएम 1322, फिर कहते हैं हाँ जी, फिर वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, फिर जितना मर्जी हो जाए। ये कौन होते हैं जी, क्या पता जो बीजेपी वाले बक्से में फेंक रहे हैं वो बीजेपी की थी या ना, उनके 16, हमारे 12, 8 कैंसल, उनके 16 के 16 को वोट करना आता है, हमारे 8 को वोट ही नहीं करना आता, हालांकि उनकी पहली वोटिंग नहीं थी ये, पिछली बार 2 रिजेक्ट हुई थी, इसका मतलब 6 भूल गए वोट करना 2 इस साल, कि उनको पता ही नहीं कि वोट कैसे किया जाता है। ये लोकतंत्र की लूट हुई आज। और कौन है ये, अनिल मसीह, ये बीजेपी के मिनॉरिटी विंग के हेड है, अपने ऑफिस बियर को प्रिजाइडिंग अफसर बनाया, और मुझे फर्जीवाड़ा, जो गैर कानूनी काम, जो इलीगैलिटी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखी है, उसे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रद्रोह कहा जा सकता है। 16 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास थे, 15 और साथ में अगर मैं एक और अन्य वोट भी जोड़ दूं, जहां 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के पास थे, वहां गठबंधन का जीतना, इंडिया अलायंस का जीतना तय था।